Hello my dear students, Rajay, today date is 1st October. BOMP ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, that is cooperative society. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੋਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਛਕ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ। ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨਗੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ, ਤੂੰ ਬਣ, ਤੂੰ ਬਣ। ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੱਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮੈਨ 1 ਵੋਟ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਚੱਲੂਗੀ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੈਨ 1 ਵੋਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸਰਪਲਸ। ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪੂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਪੂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ठीक है, उन्होंने का लैन देन हमेशा कैश की फॉर्म च होएगा। उस तो बाद आ गया फिक्सड रेट ऑफ रिटर्न, इन्हों की जी रिटर्न होएगी वापसी होएगी वो फिक्स होएगी। गवर्नमेंट कंट्रोल, हुण कॉरपोरेट सोसाइटीज़ चाहे मैंबरस ने बनाई रल के, पर यह भी एक एक्ट के अंडर ही आती है रजे, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। तो इट मीनस गवर्नमेंट भी ये इनवॉल्व होंगी है, वो समय समय पर चैक करती रहती है कि वाकई ये सोसाइटीज़ जी आ वैलफेयर का काम कर रही है, किते लोगों को ठगन का काम तो नहीं कर रही, फ्रॉड तो नहीं कर रही। उस तो बाद आंदा जी कैपिटल, फिर वही गल आ गई जिन्ने मैंबरस आउणगे मैंबर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएंगे, नाल की लियाणगे कैपिटल्स लियाणगे। उस तो बाद आपां गल करांगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिहड़ियां ने वो किन्नी तरह दियां हुंदियां ने, देयर आर वेरीअस, जिहड़ी तुहाडी बुक दे विच है मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगी। सब तो पहला आंदा जी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किन्हां वास्ते बनिया ने, समॉल प्रोड्यूसरस वास्ते बनिया ने। जिहड़े प्रोड्यूसर उत्पादक चीज़ों को बनाउण दा काम करते हैं उन्होंने प्रोड्यूसर बोलते हैं, है ना। हुण समॉल लैवल के जिहड़े प्रोड्यूसरस ने उन्होंने कोल फंड्स घट ने, प्लस जदों उन्होंने चीज़ बना ली उसका ट्रांसपोर्टेशन कित्थे करना है, किवें करना है, किद्दां करना है, किवें कंज्यूमर तक गुड्स नूं पहुँचाना है, ये बहुत ज़्यादा खर्चा आंदा है, उन्होंने वो बीयर नहीं कर सकती। तो इस चीज़ की हैल्प के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुलियां गई ने, वो हैगियां जी प्रोड्यूसर सोसाइटीज़। क्लीयर। उस तो बाद आंदा जी इंडस्ट्रीयल सोसाइटीज़, ये भी हुण तुहानूं नाम तो पता लग रहा है कि जिहड़ियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किहदी हैल्प वास्ते खुलियां गई ने, इंडस्ट्री की हैल्प वास्ते खुलियां गई ने। नैक्सट आ गया जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किहदे वास्ते, कंज्यूमर्स वास्ते। कंज्यूमर्स कौन होंदे ने, हु कंज्यूम दी गुड्स, जिहड़ियां गुड्स नूं खरीदते हैं यूज़ करते हैं। हुण अपनी सोसाइटी दे विच बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन्हां वास्ते खुलियां ने जिहड़े कंज्यूमर्स लोअर जां मिडल लैवल दे होणगे, जिहड़ियां अपनियां बेसिक नीड्स नूं फुलफिल नहीं कर सकते। जिवें हुण डिपू दी जिहड़ी एग्जाम्पल तुसीं इहदे विच ऐड कर सकदे हो, क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर्स वास्ते खोलियां गईयां ने। उस तो बाद तुहाडे आंदी है एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तुहाडी सिलेबस है नहीं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम तो पता लग रहा है कि यह मार्केटिंग वास्ते खोली गई है। मार्केटिंग का मतलब की हुंदा है, चीज़ों को बेचना। बेसिकली देखा जाए तो जो भी चीज़ों को बेचा जाता है तो वो मिडल मैन आते हैं। मिडल मैन तो इस नाम सुनिया होगा, विचोले पाने पैंदे ने आपां नूं। ते उन्हां मिडल मैनस जिहड़े ने जो काम करवा दिंदे ने अपना, पर वो अपना विच कमीशन रखते हैं। जो अपना कमीशन रखणगे, कमीशन कित्थों कड्ढणगे, साडे रेट चों कड्ढणगे, सानूं महंगी चीज़ां करके बेचणगे। तो मिडल मैन नूं एलीमीनेट करन दे लई, यानी कि बंद करन दे लई किहड़ी सोसाइटी खोली गई है, मार्केटिंग दी। वो कहंदे भी सानूं दसो तुसीं किहड़ी चीज़ विकवाउणी है, जां किद्दां वेचनी है, जां कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कोई वेयर हाउसिंग का काम है, ठीक है। ये सारे काम कहंदे असीं करके देवांगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहंदी है, पर तुसीं मार्केटिंग करो, ठीक है जी। नैक्सट आंदी है जी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फार्मिंग हुंदी है जिहड़ी फार्मर्स वास्ते खोली गई है। कोई गरीब फार्मर्स भी ने, तुसीं कोऑपरेटिव बैंक भी सुनिया होएगा, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर ही आंदी है। वो बैंक काहदे वास्ते खोली गई है, किसानां वास्ते बेसिकली खोली गई है। भी जे उन्होंने कोल जमीन है जां उन्होंने पैसे की लोड़ है, बैंक च जा सकदी है, कोई सबसिडी है, वो बैंक जिहड़ी उन्होंने दे दिंदी है, मतलब घट रेट ते घट व्याज ते उन्होंने लोन भी मुहैया करवा दिंदी है। तो वो सोसाइटीज़ किहड़ियां हुंदियां ने, फार्मिंग सोसाइटीज़। उस तो बाद आंदी है जी हाउसिंग। हाउसिंग नाम तो पता लग रहा है कि जिन्हां लोकां दे कोल घर नहीं है, जां जमीन है, प्लाट है, बट वो घर बनाने दे लई असमर्थ नहीं, तो वो वाली जिहड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उहनूं बोलदे आ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है जी। उस तो बाद जे आपां गल करिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के की बेनीफिट्स ने, मतलब तुहानूं की लाभ होंदे ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नूं। सब तो पहला लाभ यह है कि इन्हूं बनाउणा बहुत ईजी है। दूसरा मैंबरशिप बिल्कुल ओपन है, किसी नाल कोई ये नहीं कहता भी हाँ जी आह कास्ट का बंदा ही होवे साडा मैंबर, जां आह रिलीजनस का होवे, मतलब बिना किसी भेदभाव तो इस सोसाइटी का मैंबर बनया जा सकता है। हुण ये सोसाइटीज़ ने की करता, मिडल मैनस विचोलियां नूं बिल्कुल ही खत्म करता। एलिमीनेट मतलब खत्म करता। इक्वल स्टेटस, वन मैन वन वोट का राइट आपां पढ़िया ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक मैंबर का ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ स्टेटस होगा, कोई उच्चा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई नीवा नहीं होएगा। फाइनैंशियल असिस्टेंस,
कित्थों आएगा? जिन्ने मैंबरस आउणगे कैपिटल लैके आउणगे, फाइनांस जिहड़ा ऑब्वियस जी गल सोसाइटी च आंदा रहेगा। सोशल बेनिफिट, अजिही सोसाइटी किहदे बेनिफिट लई काम करदी है? सोसाइटी दे लई, ठीक है। नो सरप्लस स्टॉक, इन्हां दा मेन मोटिव सरप्लस प्रॉफिट अर्न करना नहीं हुंदा, कोई स्टॉक भी नहीं रखदे अलग तो, जिहड़ा भी प्रॉफिट या सरप्लस हुंदा वो अपनी सोसाइटी दे विच दुबारा तो लगा दिंदे ने। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट नूं वधाउण दा काम भी ये करदे ने, ठीक है। एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, इहदा मतलब तुहानूं हुण मतलब जिहड़े परसनस जिहड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे सी उन्हां दी स्ट्रगल दा एंड इस सोसाइटीज़ ने कर दिता गा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जे प्रॉफिट दे विचों फिर भी कुछ बच जाता है तो उन्होंने एज अ डिविडेंड आपस दे विच की कर लेंदे ने, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंदे ने। लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लाइफ इहदी स्टेबल है, ये तुहानूं पता ही है। लिमिटेड लाइबिलिटी किहड़ी हुंदी आ कि जिहदे विच लॉस या घाटा पैण ते उन्होंने परसनल जिहड़ी आ वो नहीं सेल करनी पैंदी ते इहदी लाइफ स्टेबल है, ठीक है। बेनीफिट्स तो बाद आपां गल करांगे डिसएडवांटेजिस दी। इन्ने हुण सारे बेनीफिट्स होण तो बाद भी कुछ कमियां ने। सब तो पहले कैपिटल की कमी है, जो मैंबर घट होणगे ऑब्वियस जी गल है कैपिटल भी तुहाडे कोल घट ही रहेगी। मैनेजमेंट अच्छे तरीके नाल नहीं होएगा, सीक्रेसी अच्छी नहीं रहेगी। कैश ट्रेडिंग, कई बारी लोअर जिहड़े बैकवर्ड लोग ने उन्हां कोल पैसे नहीं हुंदे कि कैश ट्रेड नहीं कर सकदे, है ना। उस बाद आगे मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। पोलीटिकल जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होएगा ऑब्वियस जी गल है पोलीटिकल पार्टीज इनवॉल्व होणगियां। लोगों का कॉन्फिडेंस इस सोसाइटीज़ दे विच घट रहा गा ते एक्सपैंड वधाउण दा आपां कह ते ने वधणगियां बट नहीं, एक्सपैंड होने दे चांसिस जिहड़े ने वो लिमिटेड ने, ठीक है जी। ये तो सारा चैप्टर सीगा राजी आपां एक वीडियो दे विच कवर कर चुके हैं। ते अज दे जिहड़े 2 क्वेश्चनस ने मेरे वालों ये ने कि एक तां तुसीं मैनूं दसना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे 2 बेनीफिट किहड़े-किहड़े ने। कोऑपरेटिव सोसाइटी दे 2 बेनीफिट्स जिहड़े ने वो किहड़े-किहड़े ने। इस तो इलावा तुसीं एक होर दसना मैनूं कि 1 मैन 1 वोट दा मीनिंग की हुंदा है। 1 मैन 1 वोट दा मीनिंग की हुंदा है। जे तुहानूं मेरा लेक्चर वधिया लग्या लाइक करो रजे, कमेंट करके दसो, कोई कमी पेशी है तां भी दसो रजे। थैंक यू जी।